Hello students, I am Anshu, your BCom teacher. I welcome you to Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. I will study you Unit 5, lesson number 7. So today we will discuss on topic Unit 5, lesson number 8, partners, their relations and liabilities in LLP. LLP में पार्टनर्स और उनके रिलेशंस और उनकी liabilities यानी कि जिम्मेदारियां कैसे होती हैं. Okay, so let's start. So first for all, we will study about introduction. Partners are the people who run and manage on LLP. They contribute capital, share profits and are responsible for its working. जितने भी पार्टनर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं पार्टनर्स में, वो कैसे मैनेज करते हैं एलएलपी में, कैसे रन करते हैं. दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैसे होते हैं, कंट्रीब्यूट होते हैं कैपिटल में. शेयर, जितने भी उनके प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर करते हैं. जितनी भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्किंग के अकॉर्डिंग, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं. एंड एलएलपी requires at least 2 partners but there is no maximum limit. एलएलपी रिक्वायर करती है 2 ही पार्टनर, इससे ज्यादा पार्टनर वो रिक्वायर नहीं करती. Who can be partners of LLP? पार्टनर्स कौन कौन होना चाहिए? Any individual or body corporate, company, LLP etc. can be a partner. अगर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट है वो ही कंपनी में एलिजिबल होगा as a partner. Partners share rights and duties as per the LLP agreement. Partners अपने rights को, अपनी duties को share करें LLP agreement को. Qualifications to become a partner in LLP: must be a competent person under the law, must not be disqualified by law, must agree to be bound by the LLP agreement. एलएलपी में पार्टनरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन अंडर द लॉ. हमें ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो लॉ के अंडर हो. मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अगर लॉ डिस्क्वालिफाइड है, लॉ नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा. मस्ट एग्री टू बी बाउंड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट. जितने भी एलएलपी एग्रीमेंट में बाउंडेशन है वो उससे एग्री हो. So next is disqualification of a partner, section 5. Partner में disqualification, section 5 में. A person cannot be a partner if found of unsound mind. Unsound mind यानी कि गलत बातें करना या किसी भी एग्रीमेंट को लेकर कोई गलत इंफॉर्मेशन देना, अपने राइट्स को, अपने ड्यूटीज को ना जान पाना. एंड अनडिस्चार्ज ऑफ इंसॉल्वेंट bankrupt person not clear. और जितने भी अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट होते हैं, पर्सन क्लियर नहीं कर पाते अपनी ड्यूटीज को, अपने राइट्स को, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ फ्रॉम डूइंग बिजनेस. मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम नो लिमिट अनलाइक कंपनीज वेयर लिमिट एक्सेड. मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम ज्यादा ही ज्यादा नो लिमिट अनलाइक कंपनीज वेयर लिमिट्स एक्सिस्ट. Okay, so next is designated partners. Some partners have extra responsibility for compliance and legal matters. They are called designated partners. कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं कंप्लायंस से, लीगल मैटर्स से. They are called designated partners. Manner of appointment of designated partner. At least 2 designated partners are mandatory. At least ज्यादा नहीं तो 2 designated partners होने चाहिए मैंडेटरी के लिए. They must be appointed through LLP agreement of incorporation document. उन दोनों को ही अपॉइंटेड होना चाहिए LLP एग्रीमेंट से और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से. Designated partner identification number DPIN. Designated partner identification number.
Every designated partner must have a DPIN issued by the central government. जितने भी designated partner होते हैं वो क्या करते हैं, DPIN होते हैं, उनको issued को क्या करते हैं, वो central government के थ्रू करते हैं. It is like a permanent identification number. ये ऐसा नंबर होता है जो बिल्कुल परमानेंट रहता है. Disqualifications of a person to be a designated partner. If disqualified under Companies Act of LLP Act. अगर कोई भी कंपनीज में एक्ट कर रहा है तो वो LLP एक्ट के अंडर ही होना चाहिए. If declared insolvent or convicted for fraud. Liabilities of designated partners, Section 8. They are responsible for complaints, filing returns, paying fees and legal matters. ये responsible होते हैं complaints के लिए, filing returns के लिए, fees paying के लिए, legal matters के लिए. Changing in designated partner. Any addition, removal or change must be reported to registration companies ROC. Partners and their relations. Relations between partners are governed by the LLP agreement. अगर पार्टनर्स में रिलेशंस हैं तो वो गवर्नमेंट के और LLP एग्रीमेंट के होने चाहिए. इफ नो एग्रीमेंट, राइट्स एंड ड्यूटी आर डिसाइडेड बाय द LLP एक्ट 2008. जब 2008 में LLP एक्ट हुआ था तो उसने डिसाइड करा था कि नो एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट एंड ड्यूटीज क्या क्या हैं वो उनने अप्लाई किया था. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. नॉन कॉम्प्लायंस लीड टू फाइन्स एंड पेनल्टीज. नॉन कॉम्प्लायंस में क्या होगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेगी. इफ फ्रॉड इज इन्वॉल्व, लिएबिलिटी में बिकम अनलिमिटेड. अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है तो क्या करेगा, लिएबिलिटी में बिकम अनलिमिटेड. जिम्मेदारियां कितनी होगी, अनलिमिटेड होंगी. टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट. A partner association ends by death, retirement, resignation, insolvency or expulsion. अगर पार्टनर का एसोसिएशन एंड होता है तो वो किससे होगा, डेथ से होगा, रिटायरमेंट से होगा, रिसाइनेशन से होगा, इंसॉल्वेंसी से होगा, एक्सपल्शन से होगा. Obligations of a former partner. Remains liable for acts done while he/she was a partner. अगर कोई लेबर का एक्ट कर रहा है वो डन किससे होना चाहिए, ही शी से पार्टनर से होना चाहिए. मस्ट क्लियर ऑल ड्यूज एंड सेटल अकाउंट्स. बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या अकाउंट्स में है, क्या ड्यूज में है, ऑल ऑफ दिस. रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स में चेंजेस हो रहे हैं तो उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा. एनी चेंज इन पार्टनर मस्ट बी फील्ड विद ROC विद इन 30 days. अगर कोई पार्टनर चेंज करना चाह रहा है फील्ड में ROC के साथ तो वो 30 दिन के अंदर ही कर सकता है. दिस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस. वो एंश्योर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेनेंस को रिकॉर्ड करे. पार्टनर एज एजेंट ऑफ LLP. Each partner is an agent of LLP, not of other partners. One partner act binds the LLP is done in normal business course. ईच पार्टनर क्या करेगा, एक एक पार्टनर क्या करेगा, LLP में एजेंट रहेगा, नॉट ऑफ अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर की तरह नहीं. वन पार्टनर क्या करेगा, एक्ट करेगा LLP के बाइंड को और नॉर्मल बिजनेस को डन करेगा. एक्सटेंट ऑफ लिएबिलिटी ऑफ LLP. लिमिट्स ऑफ LLP liability. Liability of LLP is only up to his assets, not beyond. Extent of liability of partners limited to their agri contribution. लिमिटेड ही होता है एग्री कंट्रीब्यूशन में. वन पार्टनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिसकंडक्ट ऑफ अनदर. एक पार्टनर रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता अगर दूसरा मिसकंडक्ट है. लिएबिलिटी बाय होल्डिंग आउट. इफ अ पर्सन फॉल्सली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, ही बिकम्स लिएबल एज इफ ही वेयर वन. अगर पर्सन फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को या एज अ पार्टनर तो वो क्या होगा, लेबल होगा. अनलिमिटेड लिएबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड. इफ अ पार्टनर कमिट्स फ्रॉड, लिएबिलिटी बिकम अनलिमिटेड फॉर हिम एंड आल्सो फॉर LLP. अगर पार्टनर फ्रॉड है
लिएबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड, जिम्मेदारियां अनलिमिटेड है उसके लिए, एलएलपी में भी। विस्टल ब्लोइंग, protection to employees or partners who report fraud, wrongdoing, or violations in the LLP. They cannot be punished or terminated for such reporting. वो क्या करते हैं? पनिश नहीं करते, टर्मिनेट नहीं करते रिपोर्टिंग के लिए। समरी, एलएलपी रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 पार्टनर, नो मैक्सिमम लिमिट। एलएलपी क्या करती है? 2 ही पार्टनर रिक्वायर करती है। Designated partner ensure compliance and legal responsibility. Partners are agents of LLP, not of each other. Partner अगर वो LLP में agents है तो वो में के लिए है, एक दूसरे के लिए नहीं है। Liabilities are limited, but fraud leads to a limited liability. Liabilities are limited, जिम्मेदारियां limited है, but अगर कोई fraud leads होगा तो उसके लिए unlimited जिम्मेदारियां हैं। Changes in partners must be registered. अगर पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं तो उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। विस्टल ब्लोअर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। So this was your lecture today. I hope you are understand it. If you want notes, so please follow Telegram channel. If you have any doubt and query, so please comment in comment box and follow Instagram channel and message it. Be ready for the next video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. Bye bye.